You're watching DMK News and welcome to our brand new show, Youth Special. And today we will be talking about student politics, particular in Arunachal Pradesh. And right now I'm at RGU, and we all know that Rajiv Gandhi University is the epicenter of any student politics or election in Arunachal Pradesh. And I'm here joined by the student of Rajiv Gandhi University, the PG student and the PhD, and also student from NERIST and NIT as well. So to begin with, my first question is, what are your expectations from new leaders, the student leaders? So who wants to go first? अभी का जो न्यू लीडर्स उतरा है उससे एक्सपेक्टेशन का बात करने से वो लोग से हम इतना एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो लोग जो अभी बात कर रहे हैं कैंपेनिंग में उसका जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वो स्टूडेंट को जीतने के बाद भी कर देने से अच्छा है। इजीली अप्रोचेबल होना है। जब भी कोई भी स्टूडेंट जाके कुछ प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस लेके आने से तो लीडर जो उसको इग्नोर नहीं कर देना है। मेरा तो इतना ही एक्सपेक्टेशन रहेगा लीडर लोग से। नॉट ओनली दिस लीडर, कोई भी लीडर हो, ऐसा होना है। When we talk about student politics, we all know APSU is the apex body of Arunachal Pradesh, which represents our students. So in my opinion, when I look up to a leader, I want a leader who not just eradicates the problem, but also brings out more opportunities for us students to participate in. And I want them to put the same effort and energy that they are putting to appeal the votes, to put the same energy when they are elected by us. I want them to put the same energy to bring forth more growth in the student community. That's my expectation from the leaders. Lots of expectation, especially regarding this APSU election, because APSU is the main representative of student community, and there is lots of issue regarding, especially in education sector. So if this coming APSU election, those whosoever contesting as candidate, I believe that if they will elect, definitely they will don't compromise, especially whenever there will be issues regarding education. So this is my expectation, and I hope the coming candidate will be go up to the mark. In fact, this time I'm very happy, and I'm sure most of us, our scholars and even the Arunachali students are very happy, because this is the first time we are witnessing a colorful APSU, and we are very happy, and we expect that this APSU will be very colorful, because this is the first time that from various regions, from various districts of Arunachal Pradesh, there are many candidates are being contest. And for the leaders, at the same time, we have met most of the presidential candidates, especially, and we are very happy that this time all the presidential candidates are very competent enough and very approachable and very genuine enough, and we expect them to be very precise with their manifesto and go forward with their manifesto. Okay, you're saying that the presidential, the candidate, they are very promising this time. Yes, and this time it's let me not compare. In fact, in the olden APSUs, before it was very genuine, but slowly with the time, I think the promising or maybe the genuinity has degraded. But this time, I think it's getting solidified. So I think we hope and expect that this time, it will be very different. I personally feel that the APSU leaders, newly elected leaders, should try to revive the lost glory of APSU. And we have seen in recent times, we have seen how the APSU, how they are getting trolled in social media. For me, my appeal to the candidates will be, because a lot of good candidates are in the fray now for running for the post of President APSU. My appeal to them will be to be decisive, more decisive, and vocal in nature, because the issues we are facing today, especially the student community, say it NERIST, RGU or NIT, we are facing a lot of extraordinary situations. So this problems has to be dealt with very strongly, so we need a decisive APSU. I think I'm looking forward to someone decisive and vocal leader. So when we talk about student politics, we all know that money culture is also a very a topic to be discussed. What do you have to say about this money culture? See, if you talk about money culture, yeah, it is a very sad side and very unfortunate to say that money involvement is there. But there are some certain restrictions or regulations
which are encouraging money culture also. In my opinion, my personal opinion, I would say, I think last month, a few days back, I saw a notice from the RGU registrar. I think the same notice is being floated in NERIS also, that they're prohibiting candidates to enter the campus. This is a very discouraging notice, I would say, because when you talk about student politics, as you have mentioned earlier in your intro speech, institutions like RGU and NERIS, they are the breeding ground of politics in student politics. So when we forbid the candidates to come to enter the campus, that is sending a wrong message. Then how will the candidates interact with the students? He has no other option. The candidate will have to organize a meeting in canteen, cafeteria, some hotel room. So a lot of money is being invested there. So instead of restricting candidates to enter the campus, I think enough time should be given, not during the class time, but certain restrictions can be made, and so that they can come and appeal the students. लाइक मनी कल्चर्स को रोकने के लिए एक अच्छा प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है अभी तक ना। तो ऐसे मतलब कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट है और जो फॉर्मर वाला लोग है, एंड देन जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है, ये लोग को एक मनी कल्चर को कैसे रोकना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपरली मतलब मैकेनिज्म निकालना चाहिए। सो रोकने का तो यहाँ डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बट आई वांट टू आस्क कि ये एक सवाल होगा कि अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आया। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मनी कल्चर को कौन एनकरेज कर रहा है? इज इट द स्टूडेंट और इज इट द कैंडिडेट? I think money culture is being encouraged by both the sides, even the candidates and even the students. And when we see the scenario here, we can see, like our elder has said, Prem Thaba, that यहाँ पे एपिसेंटर में ही कैंडिडेट्स को लेने के लिए आने के लिए मना किया गया है, एंड स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारा क्लासेस भी होता है, एंड देन बाहर जाने के लिए दे प्रोवाइड अस व्हीकल्स, एंड हमारे स्टूडेंट्स कभी कभी खुद अपना व्हीकल से जाना पड़ता है। एंड देन देयर इज़ पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, एंड देन खिलाना पिलाना, एंड देन ऐसा ये एक्चुअली बोलने से बहुत डेप्थ है, क्योंकि आपसू का अवेयरनेस इतना कम है, स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता है कि कौन क्या लीडर आ रहा है, क्या पोस्ट में आ रहा है। तो सबको मिलने का चक्कर में वी गेट वेरी, वी गेट टायर्ड, एंड वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सर्टन थिंग्स, लाइक कुछ दे दो हमको, टोकन ऑफ लव के हिसाब से। एंड वो टोकन ऑफ लव हिसाब जो आता है कैंडिडेट से, वो आता है इन अ फॉर्म ऑफ मनी। सो आई थिंक बोथ द साइड्स आर इंकरेजिंग इट। इसमें हम और एक बात ऐड कर देंगे कि जो स्टूडेंट्स है, वोटर्स लोग हैं, बहुत लोग इनोसेंट भी होता है। तो बहुत लोग जो है आपसू के बारे, जैसे फॉर्मर स्पीकर ने बोला है, बहुत लोग अनअवेयर है आपसू के बारे। अनअवेयर होने के कारण से मनी कल्चर जो है, बहुत ये जो पैसा का जो मनी इन्वॉल्वमेंट जो जाता है, तो अब जैसे कि वो इश्यूज़ के बारे पता नहीं। अगर आप लीडर को अब इशू के बारे में मालूम हो, जैसे जब मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का है, मास कम्युनिकेशन कॉलेज में नहीं है, तो और रिक्रूटमेंट में बहुत सारा मास कम्युनिकेशन बेस्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट आई विल इलेक्ट माई लीडर, इशू को लेकर हम लीडर को इलेक्ट करेगा। तो सभी स्टूडेंट लोग अगर सोचने लगे कि ऐसे इशूज़ लोग हैं, रिजर्वेशन का है, PhD का सीट का, MA का सीट का, उसके बाद में अनअफोर्डेबल फ़ीस, जो फ़ीस अभी बढ़ते जा रहा है, एग्ज़ाम का फ़ीस भी अभी RGU का 1700 हो गया, बोले स्काई रॉकेटिंग फ़ीस, इसका बारे में बात करेगा। तो इशू बेस्ड लीडर को कनेक्ट करना है, तब जाकर आप वो जो पैसा का लेन देन हुए, जो भी पेट्रोल कूपन जो होता है लेने के लिए आपका कंसाइंस मना करेगा। वो है मेरा बात। हम लोग जो लीडर्स लोग को एक्चुअली फर्स्ट टाइम है कि हम लोग जो दिल से एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों बोलने से, क्योंकि वो लीडर्स लोग जब इलेक्शन टाइम होता है तभी हम लोग दिखाई देता है। यूजुअली होता है कि ग्राउंड लेवल में जितना स्टूडेंट लीडर्स होगा, आपका ग्राउंड लेवल में जो काम करके आता है, उसको देखने से एक होता है कि आप लिटरली फील करते हैं कि वी शुड नॉट टेक मनी फ्रॉम देम। हम लोग का यहाँ व्यू पॉइंट ये है कि एक जो ये एज फैक्टर भी होता है, कोई लीडर्स होता है कि बहुत एक क्या होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड होता है, तो उसको स्टूडेंट्स लोग देख के क्या लगता है, अरे इसका पास ऑलरेडी पैसा है, ये तो देगा। और वो भी एक ऐसा टाइप ये क्या दिखाता है कि ओके आई हैव मनी, तो उसमें होता है कि ये ऑटोमेटिकली एक तरफ से हो जाता है कि इंसान का जो मेंटल जो हम लोग का जो थिंकिंग है, वो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव वे में कभी कभी चला जाता है। तो
वो ऐसे होते हैं कि जब अगर वो परफॉर्म करते हैं उसका सोशल मीडिया में आजकल तो प्लेटफॉर्म में जब वो दिखाएगा कि आई एम डूइंग वर्क, तो वर्क होने से अगर उसका वर्क से हम लोग जज करेगा तो मनी कल्चर जो हमको लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं कम होगा। जो हम लोग का जो अपसू इलेक्शन है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन है, हमको ऐसा फील होता है। इसलिए कहीं ना कहीं से कि तबा सर बोला है, हम लोग का जो है आपका कैंपस अंदर में जो हम लोग का अगर कैंपेनिंग होने से बाहर जाने से हम लोग ऐसा होता है कि बाहर जाना पड़ता है, कई बार होता है आपका रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, ऐसे होता है वहाँ मीटिंग फिक्स करते हैं, तो उसके लिए तो आपको कैंडिडेट तो खर्चा करना ही पड़ेगा, तो उसका कारण जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ऐसा बिल। ये मनी कल्चर मतलब इसमें मनी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है बोला है, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम मतलब जो हम लोग का जो डेलीगेट रजिस्ट्रेशन होता है ना, इसको तो मतलब फ्री कर देना है हर जगह में ना, और रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जैसे अभी फर्स्ट नोटिफिकेशन में तो मतलब खुद रजिस्टर करना है, पीजी के लिए आना है बोल के क्या था, लेकिन वो लोग अभी फिर उसको चेंज करके अभी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कर रहा है, तो ऐसा ही करना है, आगे आने वाला समय में भी ऐसा ही करना है। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि हम लोग का रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लोग ही करेगा ना, तो उसमें उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। और एक होता है कि जब कैंपेनिंग के लिए एवरी इंस्टीट्यूट जो है मेरा ख्याल से एक कैंडिडेट लोग को इंटरेक्शन के लिए एक समय दे देना है इंस्टीट्यूट में, हर इंस्टीट्यूट में। जैसे कि हम लोग उस दिन नेरिस में इट्स एवरी कैंडिडेट सब लोग तो नहीं आ सका है, लेकिन जो लोग आया है वो लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो उस तरह से देना चाहिए ताकि ये जो हम लोग का जो इंटरेक्शन के लिए हम लोग बाहर जाके जो कैंडिडेट लोग जो एक्सपेंडिचर करता है उसको मिनिमाइज़ कर सकेगा। जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो लीडर्स होते हैं दे आर फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड हिस्ट्री में ऐसे ही होके आया कि जितना भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी लीडर्स होके आए हैं वही हमारा कल परसों एक गवर्नमेंट बनता है, वही हमारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है, एमएलए बनता है। तो अगर वो स्टूडेंट से उसका जब करियर पॉलिटिकल करियर का जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज से वो मनी कल्चर में प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, तो हम वो फ्यूचर में फिर जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करेगा तो वह मनी कल्चर ऑब्वियसली वो लाएगा, क्योंकि उसका इनिशियल रूट से वो लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत सीरियस कंसर्न है। जैसे कि एक चीज़ एडिशन करेगा मनी कल्चर में थोड़ा मैकेनिज्म का बेसिस में, जैसे कि हम लोग कैंडिडेट से मिलता है, हमारा लैब का कोई प्रॉब्लम है नेरिस में, आरजीयू में, तो हम लोग स्कॉलर्स को एक डिमांड रखना चाहिए, 2-3 डिमांड की आप अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो आप ये हमारा डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ थोड़ा हम लोग अपने में एथरो लेके स्कॉलर्स को मास्टर्स को मिलता है, इंडिविजुअली मिलता है और एक ग्रुपिंग करके मिलता है, वो चीज़ थोड़ा एक चेक एंड बैलेंस करने से ठीक है। दैट्स माई पॉइंट एक्चुअली। तो इन ऑर्डर टू मतलब ये चीज़ को मतलब ये ना कंट्रोल करने के लिए आई थिंक द वोटिंग एलिजिबिलिटी शुड बी चेंज्ड। कि देखो अरुणाचल में जो मतलब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑल्सो द स्टूडेंट्स एंड एवरी इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। सब इंस्टीट्यूट जो मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ में ऑल द कैंडिडेट्स वुड बी उन लोग आगे मतलब अपना जो ओपिनियन है मतलब हर इंस्टीट्यूशन से होने से ना सो ऐसा मतलब ऐसा होने से द स्टूडेंट्स तो उन लोगों के पास में आना ना। Right now, it is became like a culture because it is अपसू आ गया तो ये हमें घूमना पीना खाना पीना ऐसे होता है। तो instead of that doing, there is a lack of department in colleges, many colleges like demo college also, and there's lots of college. कोई भी सिर्फ इलेक्शन करने के लिए कहीं भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद कि अभी फिर प्रैक्टिकल में आप लोग स्टूडेंट है, कि स्टूडेंट का क्या कमी है, यू आर इन ए इंस्टीट्यूट, यू आर स्टडिंग, सो डू यू थिंक कि अगर एज बार नहीं होने के कारण से उन लोगों को प्रैक्टिकल क्या मुश्किलें होते हैं उन लोगों को पता नहीं है, सो डू यू थिंक कि एज बार होना चाहिए फॉर द कैंडिडेट्स? अभी जैसे हम लोग का बहुत सारा कैंडिडेट्स है, जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं देन हम लोग उसको हम लोग का जो इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है ना कुछ बताते हैं, तो वो लोग ऐसा होता है कि इसका बारे हम लोग कुछ पता ही नहीं है बोलते हैं ना, तो उसका जो स्टूडेंट वाला जो एज है वो ऑलरेडी वो 5, 6, 10 साल पहले क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो लोग नहीं समझते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के लिए कंटेम्प्रेरी इंसान चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मेरा ऐसे कि हम बोला है कोई कैंडिडेट लोग को आप लोग का एज जो कोई कैंडिडेट्स है, हम लोग का भी प्रेजेंट कैंडिडेट्स में ऐसे है कि बहुत सारा लोग जो थोड़ा सा कुछ मतलब एज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम वो लोग को भी बोला था क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका होता है कि विद हम लोग का एज देखने से क्या होता है कि आपका जब जवान होता है आपका जो एक खून जो काम करने का एक जज्बा होता है
जुनून होता है और आपका जो बॉडी फिजिकली जो आपको हर जगह में दौड़ने के लिए ये एक होता है। हम लोग अरुणाचल का देखो बहुत वास्ट एरिया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खेलेगा तो मेरा इसका बात तो है ये कमा के रखना, ये करके रखना, एक वो थिंकिंग भी आएगा क्योंकि हम लोग का ये जो होता है कि विथ टाइम जो बॉडी का जो या मेंटली जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखना चाहिए। इसलिए हम पर्सनली फील करते हैं कि एज बार होना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप अपसू बाई लॉ में अगर आता है बोलने से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। At least the contesting candidate, especially for who are representing student, they must be bachelor, because if they have already settled, then their way of interest will be very different. But if they remain bachelor like ASU, all Assam Student Union, who will contest for ASU, they will have to remain bachelor. So if they remain bachelor, then they will be go anywhere wherever there is requirement for that particular candidate. But they are already settled and their way of interest will be a little bit different. And a very good point put it across by Mr. Kamdir. रिगार्डिंग एज बार और ये जो मैरिटल स्टेटस का, ये सुनने के लिए अच्छा है, इसको रोमांटिसाइज करने के लिए अच्छा है, लिखने के लिए अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये फिजिबल नहीं है। अरुणाचल में स्पेशली जैसे ट्राइबल सोसाइटी है, फैमिली सर्किट कम होता है, छोटा से आदमी को लड़का को लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज भी हो जाता है। तो विद चेंजिंग टाइम आने वाला सालों में 10-15 सालों में तो सुधार आएगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो वो जो मैरिज का फैक्टर आई थिंक इट्स नॉट फिजिबल इन अरुणाचल फॉर नाउ। और अदर देन दैट वो जो एज फैक्टर का बात कर रहा है, हम भी एग्जैक्टली तो नहीं बोलेगा कि इसको हम ये करता है कि सपोर्ट करता है बोल के, लेकिन वहाँ में आपसू ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, एज फैक्टर रोल प्ले करेगा। जैसे लिंगदो कमीशन यूजीसी का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का लीडर के ऊपर लागू किया जा सकता है, आरजीयू का आरजीयू प्रेसिडेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूट बेस जैसे एनआईरिस हो गया, एनआईटी, वहाँ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को एज लागू किया जा सकता है, कैंपस इंटरेस्ट इश्यूज़ को वो उठाएगा। तो जब आपसू के बारे में बात करें, एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। तो ये लोग जो है आपसू जो है ये अपोजिशन पार्टी का भी रोल प्ले करता है, क्योंकि अरुणाचल में सच में भी अपोजिशन पार्टी तो है भी नहीं है। जब आपसू कुछ बोलता है सरकार को कि ये नहीं होगा, तब आपसू जब बोलता है स्टेटमेंट देता है तो उसका ट्रेमर्स को सारा स्टेट में फील होता है, सब मालूम चलता है कि आपसू बोला है तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो आपसू जब बोलता है तो प्रेसिडेंट जब बोलता है उसका सेक्रेटरी, तो उसमें मैच्योरिटी होना ही पड़ेगा, जैसे भी बोलो। As the saying goes, leader is not born, leader is made, and a leader must have experiences. I might not totally agree with the age bar, but yes, 50 plus, that is a lot, because student-centric should be below 50. And when we talk about age bar, there should be criteria, like president, there's GS, and there's all the assistant posts, and there are also smaller posts. So we can go with the smaller posts with smaller age bar, and for the higher post, we should go with the higher age. जब हम एक्सपीरियंस का बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस जो हमेशा ईयर्स से ही नहीं आता है ना। ऐसा भी होता है कि कोई 15 ईयर्स का है लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है ना, जो जिसका 30 ईयर्स का भी है होता है, जो प्रैक्टिकली जो काम करता है उसका पास एक्सपीरियंस होता है ना। और एज का जब बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज से ही एक्सपीरियंस आता है ना, वो आपका काम से एक्सपीरियंस आता है। One should be a present student in any institution. So in case of RQ, as we all know that what is the situation here, most of the more than 50% of the students, they get admitted here only for the purpose of election, for to become the candidate or to become the voter, to get the voting right, which is totally not acceptable. Yeah, I also agree that maturity is much more important, because it's APSU, especially in Arunachal Pradesh, there is no opponent, so opposition, so APSU is wrong. But what I feel is maturity and is came when there is experience, when that contest candidate is involved in many issues, lots of activities. If he himself involved and herself involved, then definitely even in 18 years or in small age also, he will much more experience. Age, actually, what I feel that age limitation is meaningless in reality. And if there exists the money culture, then of course there won't be any possibility that
age bar should be there. एक मिनिमम एज या एक मैक्सिमम एज होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखता है हम लोग एक प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एक मिनिमम एज होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि मतलब आप जो करना चाहता है उसको भी आप वो स्पेसिफिक टाइम में ना हमको करना है बोल के आपको वो एक आपका माइंड में वो रहेगा, मतलब कि हाँ हमको ये समय में हमको ऐसा करना है बोल के ना। अदरवाइज़ क्या हो गया कि जस्ट यू विल बी टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ना, ठीक है इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होते रहेगा। आप लोग को क्या लगता है इन टुडेज आज का जो लीडर है, लाइक डू यू थिंक दे विल ब्रिंग एनी चेंज? हम थोड़ा मतलब कैम में थोड़ा मतलब आपसू में थोड़ा इन्वॉल्व होने में है, उसके कारण से थोड़ा सा हमको आइडिया हो गया कि लीडर लोग कैसा है, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग कैसा है, सबको मिला है, सब अच्छा है, सब वेल क्वालिफाइड है एक लीडर बनने के लिए। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी का जो न्यूली एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग है वो लोग चेंज लाएगा, रिफॉर्मेशन लाएगा वो लोग, ऐसा फील होता है हम जो, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, दिल से कॉन्फिडेंट है, लाना चाहिए। Be it be negative way or positive way, there will be definitely change. If you choose the wrong one, if you choose the corrupted one, definitely there will be more corrupted. Also वहाँ पे भी change तो कुछ तो change होगा, be it be corruption होने से भी change तो होगा ही। उसके बाद and another thing, if you choose the right one, there will be positive change. So now the thing is, it's not up to only the leader, it's up to us कि what sort of leader we choose. I quite agree with her that we should be the one who chooses the right leader. And in this, I would like to add that I don't think any leader is wrong, because if they are coming to APSU, they are capable of changing, of bringing change. But it's up to us to not just elect them, but to thorough them as well. When they are elected, we should, in these 3 years, we should look up to them. Are they following the manifesto? Are they covering it or not? As a mass communication student, I would definitely look up the presidents, look up the general secretary and all the assistant posts. Are they doing the work they promised to do? So that would be our job to, do the query, do the inquiry and all. So this would be our privilege and our responsibility. Then we can see a change. Then we can bring a change with the leaders. Like I have said before, I think this time we have to show them that we are quite positive about them. So because this time they are very competent, like we have said, they are very approachable. So they are very humble too, and they have very strong manifestos, and they are very genuine enough. So if we are positive about them, if we throw our positive vibes towards them, I think they will be very positive about their work. So let us be very positive. Let us hope for a fruitful result. अगर ये जो लीडर जो है APSU लीडर जो है अगर सही ढंग से काम करेगा या APSU का जॉब मेंबर सही ढंग से करेगा तो ग्रीवेंस को अगर सही ढंग से प्लेटफॉर्म में एक अच्छा देगा तो हमको नहीं लगता कि अलग अलग जो अभी जो यूनियन जो बनता है ना APSU में या अलग अलग स्टूडेंट यूनियन जो है पास्ट में जो बहुत सारा भी आया है वो इतना नहीं होगा। APSU को एक लुक अप तो करने से APSU एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म दे के बहुत होगा। और APSU का लीडर हमको लगता है कि डायनामिक इनफ अभी का जो लीडर आ रहा है, डायनामिक इनफ की जो भी कैंडिडेट कंटेस्टेंट्स है वो डायनामिक इनफ की हम लोग का सबका रीडर या ग्रीवेंस रीडर करेगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जो भी जेन्युइन वोटर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स है, मेरा साथ में हज़ारों स्टूडेंट्स नेरियस का, NIT का, अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट का, जब आप लीडर चूज़ करते हैं तो आप बैकग्राउंड को प्लीज़ जैसे भी देखिए, क्योंकि लीडर को इलेक्ट करने का भी एक पैरामीटर होना ज़रूरी है। लोग अननेसेसरीली एंटी इनकम्बेंट का वेव चला रहा है, कोई लोग रीटेंडर का वोट यूज़ कर रहा है कुछ कैंडिडेट को लेकर। देखना चाहिए कि वो कैंडिडेट लोग का बैकग्राउंड हिस्ट्री को हमेशा देखना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो अभी 5-6 लोग प्रेसिडेंट पोस्ट का फ्रेम में है, जनरल सेक्रेटरी में भी 4 लोग जैसे फ्रेम में है, तो उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री को और पास वो लोग का जो एक्सपीरियंस है, वो लोग क्या करके आया, कैसे जी कर आया, उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि आप कोई भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल्ली में देखो 3 बार आम आदमी पार्टी जीता है, वो लोग का भी स्लोगन ये था कि लास्ट इलेक्शन में अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। पीपल आर लुकिंग अप टू केजरीवाल सरकार की उन्होंने कैसे काम किया, पब्लिक को लेकर स्कूल को कैसे रेवोल्यूशनाइज किया, उसके बाद में महिला के लिए क्या क्या काम किया। अभी बस में भी फ्री राइड है ये वुमेन के लिए दिल्ली में। तो पास वो जो उसका टेन्योर में जो काम किया है उसको लेकर जज करके वो पास बन जाता है। तो उसको जज करके बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर ओनली ये करता है, अगला सरकार भी बनाने देते हैं। तो केजरीवाल अच्छा काम किया, उसको
ये करेगा, हराना जरूरी है, एंटी इनकम्बेंट वेब चलाकर नेक्स्ट में नया फेस चाहिए, फ्रेश फेस चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं है, इसको हम डिसमिस करता है। तो कोई भी लीडर को आप सेलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका पास का देख देना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे काम किया है, था कि नहीं था, वास ही वोकल, वास ही देयर फॉर द स्टूडेंट्स, देयर इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। तो चेंज का बात लाइक हम लीडर से चेंज एक्सपेक्ट तो करता ही है, चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट लेकिन जो एज ए वोटर का भी जो मतलब सोच जो चेंज होना पड़ेगा। जैसे हम लोग लास्ट अगर देखता है तो लास्ट 5-6 साल उससे जितना भी साल पहले जैसे था, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस जो अगर सेम होगा, लाइक पैसा लेगा एंड देन वोट मारेगा, तो सेम चीज़ रिपीट होने वाला है। तो ये जो वोटर्स जो है स्पेशली चेंज होना पड़ेगा। We the student, we should raise the issues, isn't it? And what we believe is that those who have so become elected, they must be backing the issues. Without their backing, if we raise the issues, that issues will be their achievement होने के लिए हो जो थोड़ा it will ज़्यादा मतलब वक्त मतलब ले रहा है। इवन सर्टेन कुछ इशूज़ ऐसे भी है, वट एवर इफ वी स्कॉलर स्टूडेंट हैव रेज द इशूज़, बट बिकॉज ऑफ दिस representative, especially up to, they are not backing, they are not interested. So because of their that kind of attitude, our issues is not achieved. To wind up this discussion, I have my last question. I want to ask everyone, how far it is true that nice guys finish last? मेरा ख्याल से तो आई थिंक नाइस गाय इसलिए लास्ट में फिनिश करता है क्योंकि वो ही डजंट अप्लाई शॉर्टकट मेथड ना, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करता होगा, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। It should be decided by the voters like us. If you are intellectual enough and if you are very genuine enough, I think nice guys will finish first. So we should decide nice guys finish first, not last. And in addition, let me quote a sentence from Bible like, those who first will be last and those who last will be first. So I think nice guys will finish first. मेरा ख्याल से वो ज़माना अभी ख़त्म हो गया ना, जिसमें हम लोग मतलब लाइक जैसे बाकी का मटेरियलिस्टिक चीज़ पे हम लोग पहले ध्यान देता था, जैसे मनी कल्चर ये सब में ना, लेकिन मेरा ख्याल से वो समय ख़त्म हो गया। अभी का समय में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी हर कोई मे बी लाइक जैसे कि मनी फ्लो होगा, वो सब होगा, वो सब के बावजूद वोटिंग जो है राइट पर्सन को ही देगा। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है लाइक हम इसको कंट्राडिक्ट करते हैं और इस बार नाइस वाला ही फर्स्ट रहेगा। Let us not make a statement कि nice guys will finish last. Let us not discourage the nice people, nice leader out there. Let us be, I think, more क्या बोले open minded कि अच्छे लोग अच्छा पोजीशन में अच्छा वोट का साथ जीतेगा, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी लेकर आएगा और अच्छे दिन दिखाएगा। एक्चुअली अब नाइस वो होते हैं ना, आप किसको अच्छा नहीं बोलते, जो पब्लिक डोमेन में एक अच्छा काम करते हैं उसको अच्छा बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो लीडर्स आए हैं वो अच्छा हो गए तो अब उसको पब्लिक कहीं ना कहीं 100-200 आदमी सपोर्ट करके तो उसका पास वो इंकरेजमेंट आया कि वो आगे आएगा। सो अभी जो फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट कैंडिडेट में 5 पीपल है तो वो 5 कैंडिडेट्स है, तो वो 5 कैंडिडेट्स अच्छा हो गए तो वो अरुणाचल में से 5 होके आया है। अब वो तो नाइस है ओबियसली, तो 5 में आ रहा है वो। अभी फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया तो आपको उसमें जीता उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है ना अच्छा नहीं है, उसका अच्छा ही था जो उसका लूजिंग और विनिंग से नहीं देखता, अच्छा ही इंसान का उसका काम से होता है। वो इसलिए बोलेगा कि नाइस पीपल जो है वो नाइस ही रहेगा और वो हमेशा विनर ही रहेगा। ऐसे हो जाता है जैसे कि आप लोग लास्ट में आता अच्छा आदमी, क्योंकि अच्छा आदमी लोग अच्छा मतलब वो को हम अच्छा है बोल के ऐसे ही रह जाते हैं, और जो खराब आदमी है वही मतलब हम अच्छा है बोल के घूमते रहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो मैंने आउटपुट देता है उसी को आदमी लोग भी इम्बाइब करके मतलब ना रख लेते हैं। तो लेकिन रिगार्डिंग दिस मैटर स्पेशली इन आपसो, हम जो होप करता है जो अच्छा आदमी हो वही आएगा, मतलब आगे ही आएगा। Okay, this is it for today. I think we have covered everything regarding student politics in Arunachal Pradesh. We have covered the expectation from new leaders and money culture, and is the coming candidates going to bring any changes? So I think we have covered almost everything. So this is it for today, and I want to thank everyone for joining in for this discussion and being so vocal in every
question that I have asked. Last but not the least, I want to say that let's agree to disagree, and this is it. And for more news, keep watching DMK.